finance recruiter at FP Technology, having experience spanning 17 years of leadership across the field of finance, strategy, and business operations. Gold medalist in the subject of direct tax in CA examination and All India rank 7 in CS examinations. Having worked with organizations like Flipkart, Simplilearn, Carry, Pernod Ricard, and ITC, a trusted name as advisor to business leaders and senior management. The Arjun Within is a series that will help the students to find out the purpose of focus in the world full of distraction. Looking forward to steal some pearls of wisdom from you, sir. And thank you for accepting our invitation at a very short notice. And over to you, sir. Thank you, Vinit ji. बहुत बहुत आभार. It's indeed a pleasure to have this opportunity. I always tell people if I was not a chartered accountant, I would be a teacher, and these kind of opportunities actually help me live a little of that craze that I have within me to be a teacher. Thank you so much to the college faculties and for this thoughtful uh, organizing body to have this conversation, to allow me have this conversation. So to begin with, Sarvana Jai Maharashtra, and I would like people to switch on their videos because normally in this mode of conversation there are no backbenchers, but here people become backbenchers by choice by switching off their video and audio. But nevertheless, no problem, we can start the conversation. uh, so I while I have a presentation and we will go through it, I would like to talk to you rather than give you a lecture कि मैं आया और बहुत कुछ बोल के चला गया and I don't know what you were able to receive and you don't probably know what I wanted to land with you as a message. So let's try to have a conversation. आप I'll ask you some questions और आप answer देंगे तो वहां से हमारी बात आगे चलती रहेगी and then we will come to the presentation also. Before coming to that, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं. हम लोग बात कर रहे हैं कि द अर्जुन विद इन. तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये कोई जेंडर बाइज्ड कन्वर्सेशन नहीं है. जब हम बोल रहे हैं अर्जुन तो हम केवल मेल प्रोटैगनिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं या इट इज नॉट टारगेटेड टू मेल्स ओनली. इट इज फॉर एवरीबडी. हम एक कैरेक्टर पकड़ रहे हैं एक कहानी में से, एक रादर महाकाव्य में से. मतलब आज तक भी महाभारत से बड़ा या उसके जितना तो कोई लिख नहीं पाया. तो हम उसमें से एक कैरेक्टर पकड़ रहे हैं. वो कैरेक्टर हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस कर चुके हैं या करने वाले हैं, जिसे स्ट्रेस भी कहते हैं, डेस्पिरेशन भी कहते हैं, वो अर्जुन ने फेस की एंड ही वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट. तो अर्जुन वी आर टेकिंग एज अ मॉडल where we can relate to. So whether you are an Arjun or a Draupadi by gender, it's okay, doesn't matter. We have to look at what Arjun went through and how he was able to tackle it or not able to tackle it and hence reached out to someone seeking help, right? So let's start with this कि अच्छा, एक और डिस्क्लेमर बिफोर वी गेट टू अ क्वेश्चन. वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी रिलीजियस और डिवोशनल काइंड ऑफ अ कन्वर्जेशन. हम केवल एक स्टोरी लाइन से एक ऐसे कैरेक्टर को ले रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होल्ड करता है लेकिन किसी एक पॉइंट पे आके बहुत ही वीक हो जाता है. तो इनहेरेंटली उसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं लेकिन किसी पॉइंट पे जाके वो वीक हो जाता है.
और हम ये देखेंगे कि समवेयर दिस हैपन्स टू ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ्स, राइट? अभी राइट नाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस फर्स्ट ईयर, सो दिस इज maybe the last layer of your foundation into or towards your career, right? आपने डिसाइड किया, आपकी फैमिली ने डिसाइड किया, सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर एबिलिटी और स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और वहां से आप अपना काम करोगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, आप पैसा कमाओगे, आप नाम कमाओगे, यू विल अचीव एवरीथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू और यू योरसेल्फ एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। तो वो सब आप स्किल्स अर्न कर रहे हो, ये आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। यहां से लाइफ के चैलेंजेस चालू होंगे। अभी तक जो आपने सीखा है, अभी तक जो आपने समझा, जो आपने नॉलेज अर्न किया, जो भी आपने स्किल अर्न किया, वो सब फाउंडेशन था। तो अभी तक जो हो रहा था वो आपकी ट्रेनिंग थी, उसमें चैलेंजेस नहीं थे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उसमें चैलेंजेस नहीं थे। इट वाज अ वेल प्रोवाइडेड फॉर ट्रेनिंग विच यू आर गोइंग थ्रू। अभी भी आपकी ट्रेनिंग के और कुछ साल बाकी हैं, वो चलता रहेगा। चैलेंजेस आएंगे उसके बाद में, जब आप रियल वर्ल्ड में ऑल अलोन फाइट करने को जाओगे कि अब मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है या अपना बिजनेस बनाना है, या और जॉब सिक्योर करने के बाद में मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे सोशली रेपुटेशन अर्न करनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे मल्टीपल एस्पिरेशंस आपके बिल्ड होते जाएंगे। फिर जब आपकी फैमिली ग्रो होगी, तब और आपकी एस्पिरेशंस भी बिल्ड होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बिल्ड होंगी, आपको कई तरह के सोशल और इमोशनल चैलेंजेस आएंगे। तो मैं जो बात करने वाला हूं आपसे, इट इज विद दैट कॉन्टेक्स्ट कि आप आज से कैसे तैयारी करोगे। यू आर राइट नाउ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, जहां पे बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज या डिफिकल्टीज हो सकता है आप अपने परिवार में देख रहे हो, लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व करने में और एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा अंतर होता है, राइट? तो ऑब्जर्व करने में आप किसी से एम्पैथाइज कर सकते हो कि हाँ, उसके साथ ये दिक्कत हुई तो उसने ऐसे हैंडल किया या नहीं किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया। लेकिन जब आप खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो, तब वो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे इंटेंसली आप उसको एक्सपीरियंस करते हो और आपको समझ में आता है कि हाउ हार्ड इट कैन बी, राइट? तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। मैं अपने प्रेजेंटेशन को भी सामने रख लेता हूं। अच्छा, बाय द वे, मैंने अभी किसी का हैंड रेज देखा था। आपको किसी भी पॉइंट पे अगर लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप पॉज करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप चैट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। प्लीज फील फ्री टू रिएक्ट। आपको या हेलो, ओके। तो आप कोई भी आपको रिएक्शन देना है, आप रिएक्शन दे सकते हो। एंड जस्ट जस्ट डोंट वरी अबाउट कि कन्वर्जेशन ब्रेक होगा। कन्वर्जेशन ब्रेक नहीं होगा, वी हैव अ स्ट्रक्चर, हम उस स्ट्रक्चर से उसको मेंटेन कर लेंगे। और एक और चीज मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ऑन अ लाइटर नोट। मेरा ना लगभग 9 घंटे लगातार एक ही सीट पर बैठकर बोलने का और यूट्यूब लाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं लगातार बोलता ही चला जाऊंगा। अगर आप लोग नहीं रोकोगे तो आई हैव द कैपेसिटी टू सिंपली कंटिन्यू, ठीक है? तो फॉर योर ओन गुड सेक आपको मुझे रोकना पड़ेगा। वेर एवर यू हैव अ डाउट और यू वांट टू ऐड समथिंग, करेक्ट मी, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, आप कुछ पूछ सकते हो, ऐड कर सकते हो, बट यू विल हैव टू स्टॉप मी, नहीं तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा। सो आई कैन लाइक गारंटी यू फॉर दैट। तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। द प्रेजेंटेशन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हु इज अर्जुन। सो वुड एनीवन लाइक टू टेल मी कि हाउ डू यू नो अर्जुन, हु इज अर्जुन? आप उसके कोई भी
पर्सनल ट्रेट्स बता सकते हो, कोई फीचर्स बता सकते हो, आप उसका फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहो, उसके स्किल सेट बताना चाहो, कुछ भी। हाउ डू यू नो अर्जुन? हु इज अर्जुन? ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आई थिंक आइस ब्रेकिंग नहीं हो पा रहा है, बट इट्स ओके। आप जेंजी लोग हो सकता है मिलेनियल से बात करने में थोड़ा कम इंटरेस्टेड है, फिर आप बाद में जाके अपनी क्लास में बोलोगे कि ये बहुत जज करता है, बट इट्स ओके। आई कैन टेक दैट। सो कैन यू सी माई स्क्रीन एटलीस्ट इफ somebody कैन confirm? Yes, sir, it's visible. Okay, perfect. Thank you. Okay, so Arjun was the warrior prince जो पांडव साइड से था. So I assume कि हम स्टोरी में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ही इज अ वॉरियर प्रिंस. ठीक है, तो वो एक रॉयल फैमिली में जन्मा हुआ है और उसका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है. वो धनुर्धर है, तो वो आर्चरी में ही इज द बेस्ट आर्चर नोन टू द वर्ल्ड एंड ही इज वेरी स्किल्ड अबाउट इट. तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि वो एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आता है. उसके बाद में उसने अपने ऊपर बहुत सारी मेहनत भी की है. उसके पास में सॉलिड स्किल सेट भी है. ठीक, उसके बाद में उसके और ऐड करने की क्या चीज है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं. जैसे कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि देयर वाज अ टाइम जहां पे उसे उसकी फैमिली के साथ, उसके भाइयों और उसकी मदर के साथ में जीवित जलाने का प्रयास किया गया था. या देयर वाज एन अटेम्प्ट टू बर्न देम ऑल अलाइव. तो वो एक ऐसी सिचुएशन में भी रह चुका है. वो एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर चुका है जहां पे उन्हें बोल दिया था कि तुम यहां से चले जाओ एंड यू डू व्हाटएवर, लेकिन ये राजपाट में तुमको कुछ नहीं मिलेगा. सो हियर इट इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिचुएशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं और हम जो आपस में बात कर रहे हैं, वी आर इन अ वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल जोन फॉर आवरसेल्व्स. उस कंफर्टेबल जोन से एक ऐसी जगह पहुंचना जहां पे कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके पास आपके बेसिक्स अवेलेबल नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा आपके साथ में या होना चाहिए किसी के साथ में. व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ सिचुएशन. जैसे आई गेस प्रोबेबली जितनी भी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो सुना ही होगा कि आप जैसे ही ससुराल जाते हो आपकी एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, द होल एटमॉस्फेयर चेंजेस एंड यू आर लाइक ओके, आई नो व्हाई आई एम हियर फॉर. लेकिन हर 1 घंटे में आपको एक नई चीज, एक नई सिचुएशन, एक नई कंडीशनिंग, एक नया एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड देयर इज अ वेरी लेस कंट्रोल ऑफ योर्स अबाउट हाउ यू कैन डील विद द थिंग्स. कभी कभी वो बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो सकता है. कभी कभी इफ देर आर पीपल हु आर फ्रेंडली टू यू एंड काइंड टू यू, दे कैन प्रोबेबली सपोर्ट यू. मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं कि इट डजंट अप्लाई ओनली टू गर्ल्स. However, their situation going to in-laws house, their situation is very dominantly visible to everybody कि भाई उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आगे दूसरे परिवार के साथ में रहने लगे और उसको अपना बना लिया. So the situation is very clearly visible to everyone. लेकिन ये सबके साथ होता है. ये सबके साथ कैसे होता है? जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूं, तो while working for different companies, I have always moved to a different place. For example, I have lived in Pune also for about... Is anyone asking something? No, sir. Acha. So I have lived in Pune, I have lived in Haridwar, I have lived in Nashik, I have lived in Chandigarh, and now I am in Bangalore. I come from Rajasthan. So all so many different kind of places.
different kind of work organizations, different kind of bosses. The only difference between a sasural and an office place, what I observe is, you can change your office at will. You obviously can't change your sasural at will. Yeah, so that's not something you do or you would like to do. What I'm trying to tell you is, would different atmosphere, different environment, not being in your comfort zone, facing challenges, being क्या बोलना चाहिए, जिसको होता है कि आपको घेर लिया है आपके हॉस्टाइल काइंड ऑफ लोगों ने, इट कैन हैपन टू एनीबडी. The point is, if it happened to Arjun with all the skills he had, all the experience he had, all the legacy of family he had, it can happen to us also. And that is why the example of Arjun we are taking. What was Arjun trained for? तो अर्जुन का एक तो स्किल था उसकी धनुर्विद्या, and the other skill was शासन. Right? He was born to be a prince and a ruler at some point of time. So that is how he was trained in the Gurukul. तो हमारी और आपकी भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ट्रेनिंग हुई है. जैसे मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, तो मेरी एक ट्रेनिंग हुई है. आपकी भी ट्रेनिंग हुई है, हो रही है. आगे आप जैसे जैसे जो भी चूज करोगे, आप चाहे एमबीए फाइनेंस में जाओ, चाहे आप आईआईएम में जाओ, आप सीए करो, सीएस करो, आप कॉस्टिंग का कोर्स करो, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. आप विदेश जाना चाहते हो तो आप सीपीए करो, या यूके वाला आप जो कोर्स होता है फाइनेंस का वो करो. तो बहुत सारी चीजें हैं जो गैदर की जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड स्किल सेट. These skill sets will always help you execute your work. लेकिन एक बहुत बड़ा स्किल होता है जो आपको मोस्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस खुद अर्न करना पड़ता है, जिसको सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं. वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस की, जैसे आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके आसपास कोई होगा जो चुगली करता है, कोई होगा जो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स करता है, जो लोगों को मैनिपुलेट करता है. हो सकता है आप भी करते हो, कभी कभी मैं भी करता हूं. तो नीड बेस्ड या अपने किसी मोटिव के लिए या कोई काम निकालने के लिए कभी कभी आप अच्छे मोटिव से किसी को मैनिपुलेट करते हो, अपनी बात को आर्टिकुलेट करते हो. कभी कभी आपके अंदर कुछ जैसे कहें कि तमोगुण हावी हो जाता है, तो आप किसी के साथ कुछ बदमाशी करने के लिए, मस्ती करने के लिए कभी कभी आप लोगों को आर्टिकुलेट मैनिपुलेट करते हो. द पॉइंट इज, इमोशनल इंटेलिजेंस जब आपके अंदर होता है तो आप अपने आप को और आपके साथ डील करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो, बहुत अच्छे से समझ पाते हो कि वो कब किस तरह से सोच रहे हैं, क्या रिएक्ट करने वाले हैं, and how probably you should be responding to it, not reacting to it but responding to it. कि आप कैसे अपने आप को स्टेबल मेंटेन करते हुए, समझो किसी ने आपको डांट दिया, कोई है घर पे है या स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी ने आपको डांट दिया या किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया. अब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो ट्रेनिंग वाला स्किल सेट है वो आपकी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस में आपकी हेल्प कर देगा कि आपने ये सीख लिया तो आप वो काम कर पाओगे. लेकिन वो स्किल सेट अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक कि आपके पास में आपका सॉफ्ट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस का ना आप डेवलप करो. और ऐसा नहीं है कि आप में नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में नहीं है. आप ऑलरेडी इतने सारे लोगों से रोज डील करते हो, बी इट योर होम, बी इट योर कॉलेज, be it a market where you have so many strangers all around you, you are talking to people
you are excusing yourself with someone, you are thanking somebody, you are taking help from somebody, you are congratulating someone. So all of this is the entire package of emotional intelligence. Anybody who is relatively more intelligent from an emotional perspective will always be able to progress more in life. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जितना दूसरों से अच्छा होगा, शार्प होगा, बेटर होगा, उतना ही आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपके स्किल सेट के साथ साथ आपको अपनी बात को आर्टिकुलेट करना, इमोशनली स्टेबल रहते हुए लोगों के सामने रखना आ जाएगा. एंड आई कैन टेल यू कि गीता में भी ये बहुत बार बताया हुआ है कि इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इमोशंस पर कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को गाइड कर पाना, दैट्स प्रोबेबली द बेस्ट विक्ट्री यू कैन हैव. मैं जो ये बात ले रहा हूं, मैं इसीलिए जानबूझ के आपके करियर पर्सपेक्टिव से इस चीज को ले रहा हूं, आपकी जो आगे की ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से ले रहा हूं, क्योंकि ये रोज होता है. कभी कभी हम इमोशन में बहुत फनी फील करते हैं, कभी कभी हम एंग्री फील करते हैं, कभी एनवियस फील करते हैं, कभी इरिटेटेड फील करते हैं. Every time, if you are aware of what emotion you are going through and you are able to control it and guide it, nobody can beat you in whatever you want to do or want to achieve. आगे चलते हैं. कौरवों से पांडवों की लड़ाई क्या थी? अर्जुन को क्यों उनके साथ में फाइट करना पड़ा, वॉर फील्ड में क्यों जाना पड़ा? तो बहुत सारी उसके पीछे घटनाएं थी. एक मैंने आपको बताया कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू बर्न देम अलाइव, और उसके अलावा भी बहुत सारे, मेनली आप ये बोल सकते हो कि इन अ वेरी शॉर्ट कंटेम्पररी टर्म आप ये बोल सकते हो कि कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था. ठीक है, दैट्स लाइक अ प्लेन समरी. लेकिन वो प्रॉपर्टी के झगड़े के पीछे अ लॉट ऑफ डिफरेंट kind of extreme and unacceptable and inhuman, unethical incidences happened with them, or rather we can say carried out against them. That was the reason why Pandavas and Kauravas came against each other and stood to fight. अब देखिए यहां पे क्या हुआ. At the beginning of the war, इस सीन को आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना कि वॉर में आप अपनी अपनी साइड से एंटर होते हो, और ये गीता के फर्स्ट चैप्टर में आता है. और मुझे आई हैव एन ऑब्जर्वेशन कि मोस्टली लोग गीता के फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और कई लोगों को समझ में भी नहीं आता है, कई लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस चैप्टर के लार्जेस्ट पार्ट में या पोर्शन में सीन सेटिंग है, दुर्योधन के डायलॉग हैं, उसमें दोनों सेनाओं का डिस्क्रिप्शन है. तो लोगों को लगता है कि यार गीता में तो सारे साइकोलॉजिकल, डिवोशनल, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो यहाँ पे ये इतनी वॉर सेटिंग को क्यों इतना डिस्क्राइब किया, उसके पीछे आपको 30 श्लोक लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? तो पॉइंट ये है कि जब तक आप उस पूरी वॉर सेटिंग को नहीं समझते हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि अर्जुन को अचानक हुआ क्या. We know that Arjun was a warrior. We know that Arjun was trained to fight. We know that he was the most skilled archer of his time, right? Almost unbeatable. We know that Arjun already fought a lot of wars earlier. ऐसा नहीं कि वो पहली बार युद्ध में उतरा तो उसको चक्कर आ गया, यार ये पता नहीं क्या है, मैं क्या ही करूं यहाँ पे, हैं? तो वैसा तो है नहीं कि अचानक से एलिना ने देख लिया कि हमजा क्या करता है और उसको घबराहट हो गई कि यार ये ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और ये क्या हो गया. तो here it is Arjun who pretty much is aware of what happens in a war and what he is supposed to do, but what happens is he says, उनके जो सारथी हैं कृष्ण भगवान,
उनको बोलते हैं कि मुझे ना दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, मुझे देखना है कौन कौन लड़ने आया। टिल दिस पॉइंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ही इज टोटली इन टू फाइट। वो बोले मुझे देखना है सबको। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है पहले से कि कौन कौन उधर फाइट करना है, इतनी तो इंफॉर्मेशन सभी को होती थी उस समय। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हिडन वॉर, गुरिल्ला वॉर चल रही है। बाकायदा पूरी लिस्ट थी दोनों साइड्स के पास में कि वहां कौन है, यहाँ कौन है। फिर भी उसको मन में आया कि नहीं, मुझे उनको ऐसा फेस टू फेस देखना है कि कौन कौन मुझसे लड़ने आया। ही गोज देयर एंड द मोमेंट ही अगेन sees and counts everybody on his own, he's saying ये तो सब मेरे अपने लोग हैं, मैं क्यों लड़ूं इनसे। एंड माइंड यू, एक बहुत स्पेसिफिक श्लोक है जहां पे अर्जुन बोलते हैं मुझे इन सबको मार के यदि राज्य मिलता है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, तो मुझे वो राज्य, सुख, वैभव नहीं चाहिए। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज अर्जुन by his experience and skill and confidence clearly knows that he will kill everyone। उसको पता है कि वो ये कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहां पर उसको दो तरह की बातें ध्यान में आई। नंबर वन, ही सेज दीज आर ऑल माय पीपल, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं क्यों मारूं इनको। बाय ऑल मीन्स आप ये लाइन कोट करके अपने आसपास के अपने लोगों से लड़ने मत लग जाना कि नहीं गीता में कहा हुआ है कि अपने लोगों को मारो, ऐसा नहीं है। देयर इज अ पॉइंट, पर्पस, रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो वो धर्म युद्ध है। सो आप कहीं ऐसा नहीं कर दो कि अरे वो एक गोल्ड मेडलिस्ट प्रतीक पलोड़ आया थे, बोले गीता में लिखा हुआ है तो मारो मारो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्म के लिए युद्ध करना होता है, वो लिखा हुआ है गीता में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉइंट इज कि अर्जुन को अचानक अपना पर्पस लूज हो गया। अर्जुन को पहले हुई सारी घटनाएं भूल गई। अर्जुन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनसे क्यों लड़ूं। एंड ही इज एट द सेम टाइम ऑल्सो सेइंग कि युद्ध से ना किसी का भला नहीं होता है, युद्ध से परिवार बिखरते हैं, युद्ध से समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो युद्ध तो करना ही नहीं चाहिए। आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री टू दिस पॉइंट। दिस इज लाइक, जिसको कहते हैं ना नो ब्रेनर, कि इसमें क्या ही बड़ी बात है, ये तो सब समझते हैं कि युद्ध से किसी का अच्छा नहीं होता। द पॉइंट इज, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, आप युद्ध ना भी करो, अर्जुन अगर चूज करे या डिसाइड करे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन जब कृष्ण भगवान के पास गया था और जब दुर्योधन भी साथ में गया था, दुर्योधन ने चतुरंगिनी सेना ले ली थी और अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण भगवान आप मेरे साथ रहना, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। उस समय अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध में क्या होता है या क्या होने वाला है। पता था ना, जिस दिन से युद्ध डिसाइड हुआ उसी दिन से पता था कि कौन कौन सामने आके लड़ेंगे और युद्ध का परिणाम क्या होता है। आज सडनली वो ये बात क्यों कर रहा है? आज सडनली वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि नाउ एट दिस मोमेंट ही इज फीलिंग इमोशनली वीक एंड ही हैज लॉस्ट द पर्पस। तो मेरा आपको ये बताने का पीछे या इतना इलेबोरेट करने के पीछे पॉइंट यही है कि कभी कभी आपके पास में एक बहुत सॉलिड पर्पस होता है कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं। I have been writing for a long period and कुछ मेरी बुक्स पब्लिश्ड हैं। फिर मैंने गीता के ऊपर काम करना चालू किया। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीटा गीता नाम से ऐप लॉन्च की। दैट ऐप हेल्प्स यू गो टू एनी श्लोक ऑफ गीता डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो कीवर्ड सर्च से आप जा सकते हो। सो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस इज, इट वाज रियली अ वेरी लॉन्ग एंड टफ टास्क। अब जब आप वो टफ टास्क कर रहे हो और आपकी साथ में आपकी जॉब है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और भी दूसरे एंगेजमेंट्स हैं, कई बार आपको क्या लगता है कि यार मैं क्यों ही करूं ये। और जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं क्यों ही करूं ये, आपके पास कुछ ना कुछ
लॉजिकल साउंड करने वाले रीजन आ जाते हैं। तो आपका क्या होता है, पर्पस तो हो जाता है डिम, और आपके जो लॉजिकल साउंड करने वाले रीजन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसके लिए करूं ये, पता नहीं कितने ही लोग गीता की ऐप डाउनलोड करेंगे, लोगों को गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है भी या नहीं, मैं इसके लिए अपना फैमिली टाइम क्यों सेक्रीफाइस करूं, मुझे इससे क्या मिल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह के थॉट्स आपके अंदर आने लग जाते हैं। ये जो थॉट्स होते हैं ये आपके जो मोटिव है, आपका जो कोर पर्पस है, उसको डिफीट कर देते हैं। वो धीरे 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 डिम हो जाता है, आपकी आंखों में धुंधला हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ योर इमोशन, या फिर जिसको डिल्यूजन कह सकते हैं, आपने डिल्यूजनल होके अपना पर्पस खो दिया। उस पर्पस को अचीव करने के लिए आप जो कुछ कर सकते थे, और जो एक प्रोडक्ट बना के दुनिया को दे सकते थे, जो रिजल्ट अचीव कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। गोइंग बैक टू अर्जुन सिचुएशन, अर्जुन अगर कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, डू यू थिंक दुर्योधन विल रेसिप्रोकेट? ही विल ऑल्सो टर्न बैक एंड से यार, जब अर्जुन कह रहा है कि भाइयों को नहीं मारना तो अपन क्यों मारे, चलो चलो अपने घर चलो। डू यू थिंक दैट विल हैपन? नो। तो अर्जुन के युद्ध से पीछे हटने के कारण इट विल ओनली बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव फॉर हिज साइड, सो more destructive, and also causing a greater loss to the dharma, the ethics of the society, the moral grounds of the society. Everybody will then remember कि दुर्योधन गलत आदमी था, उसने इनको हरा दिया, so he will become the de facto hero, कि नहीं यार ये ठीक ही किया ना इसने, इसने उनको पहले भी हराया, पहले भी जो भी टॉर्चर करने थे वो किए, बाद में इसने युद्ध भी जीत लिया। अर्जुन तो अच्छी नीति की, धर्म की बात कर रहा था, लेकिन वो तो भाग गया युद्ध से, तो ये जीत गया। सो सबको क्या लगेगा, यही करना ठीक है। तो आपका एक एक्शन आपको कायर सिद्ध कर देगा, आपको आलसी सिद्ध कर देगा, आपको नाकारा सिद्ध कर देगा, और हमेशा के लिए कुछ लोगों में, या जितने भी लोगों में जो आपकी ओर देखते हैं, हु लुक अप टू यू, उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके मन में ये फीड कर देगा कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, लेकिन ये करना कन्वीनियंट है, so everybody would like to then follow it। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है द मोमेंट यू स्टेप बैक एंड से मुझे नहीं करना। So losing your purpose because of being emotionally weak at any point of time will not only destroy your personal career or opportunities, it will also impact so many people around you। So that is why I have brought this point of how suddenly Arjun, being a great warrior, lost his purpose and suddenly thought, I don't want to do this। अब उसके बाद में अर्जुन ने क्या किया? Now this is a very critical point। अर्जुन ने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, कृष्ण भगवान जो सारथी हैं, मित्र भी हैं, उनके हमेशा से उनके एडवाइजर रहे हैं, कृष्ण भगवान says, you are talking like intellectual people, but actually you are being coward। It's your delusion, it's your confusion, it's your loss of purpose which is taking you away from performing your duty। It's not a matter of choice। आप ये चीज समझो कि यहाँ पे ये नहीं है कि अरे तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इससे तुम्हारा पर्पस सॉल्व होता है, कि मुझे ये करना था, मैंने कर लिया, मेरा अकम्प्लिश हो गया एंड इट्स डन। इट्स नॉट यू अलोन, इट्स नॉट योर अकम्प्लिशमेंट, इट इज योर ड्यूटी। जहां पे आपके एक्शंस के साथ में सेंस ऑफ ड्यूटी जुड़ जाएगा, वहां पर आप
किसी चीज से पीछे नहीं हटोगे। यहां पे वो सेंस ऑफ ड्यूटी चला गया अर्जुन का। कभी कभी हमारा भी चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं क्लास 9th में था और मुझे अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ में एक अजीब सी आदत लग गई थी। थोड़ा हमारा स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय थोड़ा डावाडोल था और उस समय हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे क्लास बंक करके बाहर खेलने चले जाते थे। तो एक्शन क्या था कि पढ़ाई करनी है। अब उस एक्शन को हमने समझ लिया अपनी चॉइस रादर देन ड्यूटी। तो ये जैसे ही आप ड्यूटी से चॉइस पे जंप करते हो, आपको लगता है मैं करूं या ना करूं, इट्स ऑल अपॉन मी। तो मैंने नहीं किया तो इट्स ओके। और जैसे ही वो इट्स ओके हो जाता है तो आप उसे नहीं करते हो, एंड देन यू आर फॉलिंग फ्रॉम योर ड्यूटी। ड्यूटी को ही एसेंशियली वर्बेटम, जिसको अक्षरशः कहते हैं धर्म कहा जाता है। आप पूरा गीता कभी भी आपकी इच्छा हो आप स्टडी करो। धर्म का मतलब ही ड्यूटी है। धर्म मीन्स कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब ही होता है व्हाट इज वर्थ डूइंग। और जैसे अभी द पोजिशन आई एम इन राइट नाउ, तो इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में, तो धर्म इज नॉट अ डिफाइंड एब्सोल्यूट सॉलिड थिंग। धर्म इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो जिस समय जो ड्यूटी आपने पकड़ी हुई है, जैसे मैंने अभी ड्यूटी पकड़ी हुई है कि मैं आपको एक लेक्चर दूंगा एंड आई विल ट्राई एंड गाइड यू अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ टू नेविगेट थ्रू इन चैलेंजिंग सिचुएशंस इन लाइफ। तो मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपको वो सिखाऊं जो आपके लिए उपयोगी हो और मैं अपना बेस्ट उसके लिए दूं। और वो अपना बेस्ट देने के लिए मेरा ये भी धर्म है कि मैं उसकी अच्छे से रिसर्च करूं, मैं उसके बारे में ज्ञान अर्जित करूं और फिर आपको दूं। मुझे आपको कोई भी अनऑथेंटिक या फेक या मिसलीडिंग बात बताने का अधिकार नहीं है। आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। वो मेरे लिए धर्म विरुद्ध हो जाएगा। दैट विल बी अगेंस्ट माई रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। तो ऐसे ही अब आप जिस रोल में हो, जैसे कि आप अभी मुझसे ये लेक्चर ले रहे हो, तो आपका रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या है कि आप उसको ऑब्जर्व करो, सीखो, समझो। आपका कोई फीडबैक हो तो शेयर करो, कोई क्वेश्चन हो तो शेयर करो, और आगे जाके उसे आप जितना हो सके इंप्लीमेंट करो और भी किसी को वो चीज सिखाओ जो आपने सीखी है। फिर जैसे ही आप इस रोल से किसी दूसरे रोल में जाओगे, किसी और सिचुएशन में होगे, वहां पे आपकी ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो ये दिस इज हाउ धर्म इज डिफाइंड फॉर अस। तो यहां पे अर्जुन ने क्या किया कि जैसे ही कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि नहीं, जो तुम ये कर रहे हो ये गलत है, तो अर्जुन ने ये नहीं बोला कि अरे आप मुझे जज कर रहे हो यार, मेरे दोस्त हो, आप ही मुझे जज कर रहे हो, मैं यार डिप्रेशन में हूं, आप मुझे गलत ठहरा रहे हो। ऐसे नहीं बोला। अर्जुन ने बोला आप मुझे गाइड करो, आप मुझे समझाओ, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, अर्जुन ये भी कह सकता है अरे मैंने ये क्या पहली बार देख रहा हूं क्या मैं युद्ध, मुझे क्या पता नहीं है क्या, मैंने पहले भी कई युद्ध लड़े हैं, आपको ही मालूम है क्या, ये मेरे फैमिली मेंबर है, आप क्या मुझे बोलोगे कि ये मेरे फैमिली मेंबर नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए आप कुछ भी एग्रेसिव, लॉजिकल, इलॉजिकल, ऑकवर्ड काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको रियली आपका इंटेंट है कि आई शुड बी डूइंग द थिंग्स विच आर द राइट थिंग्स, तब आप क्या करते हो, आप एडवाइस सीख करते हो। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेते समय या डिसीजन को रिवर्स करते समय ऑलवेज सीक एडवाइस। सीक एडवाइस फ्रॉम समवन यू नो that they are more knowledgeable, they are more experienced, and seek advice humbly कि मेरी ये सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, आई एम फीलिंग इमोशनली वीक राइट नाउ, प्लीज गाइड मी। तो हमें क्या करना है, हमें एडवाइस लेना है, मेंटरशिप लेना है, हमें गाइडेंस लेना है। एंड आई कैन टेल यू
अगर अर्जुन जैसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के साथ में ये सिचुएशन हो सकती है तो हमारे साथ भी हो सकती है, हर दूसरे दिन मेरे साथ होती है। आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ ही सिचुएशन होती है कि पता तो है कि क्या करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, करना ठीक होगा या नहीं होगा। इट हैपन्स। तो आपको क्या करना है, आपको केवल हम्बली सरेंडर करते हुए एडवाइस लेना है फ्रॉम somebody you know is more knowledgeable and experienced। अब अर्जुन ने जो अपने कंसर्न्स बताए, हमने डिस्कस भी किया कि वो कंसर्न्स सही थे, लेकिन उनकी टाइमिंग और पर्सपेक्टिव गलत था। तो कोई बात नहीं, उसने ओपन होके ऑनेस्टली बताया, उसने अपने सारे कंसर्न्स बता दिए कि मुझे ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है एंड हेंस आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो आप भी जब एडवाइस सीख करोगे किसी से, तो आपको अपने सारे कंसर्न्स, तो अ वेरी गुड टेक्निक इज कि जब भी आप किसी से एडवाइस लेना चाहो, अगर आप मेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो अपने क्वेश्चंस, अपनी सिचुएशन, अपने चैलेंजेस ऑर्गेनाइज कर लो। माय एडवाइस वुड बी कि आप अपने क्वेश्चंस, चैलेंजेस, सिचुएशन को कहीं लिख लो, तो उससे वो आपके दिमाग में भी उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा और जो आपको एडवाइस देने वाला है उनके लिए भी बहुत सरल हो जाएगा टू फाइंड द राइट मनूवर फॉर यू टू लैंड टू द राइट कंक्लूजन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जो थोड़ी और डीप लेयर्ड हैं इनटू द गीता थिंग, तो मैं वहां पर नहीं जाता हूं। एट द एंड क्या होता है कि अर्जुन कंफर्म्स टू श्री कृष्ण कि मेरा सारा डिल्यूजन, मेरा कंफ्यूजन, मेरा भ्रम, मेरी जो बुद्धि में जो ह्रास हुआ था वो अब चला गया है। आपने जो समझाया वो मैं समझ चुका हूं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझ में आ गई है एंड नाउ आई विल फॉलो व्हाट यू हैव सजेस्टेड। तो वहां पे अर्जुन ने खुद ये कंफर्म किया कि मुझे आपकी बताई हुई बात समझ में आ गई, मुझे अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का ज्ञान हो गया, इसलिए अब मैं ये करूंगा। तो आप जब भी किसी से एडवाइस लोगे तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने एडवाइस ले ली एंड देन यू आर ऑन योर ओन और आपने कभी उनको वापस कहा ही नहीं कि आपकी जो एडवाइस थी वो मुझे काम आई, नहीं आई, मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, इट वाज हेल्पफुल और नॉट। ये नहीं होना चाहिए। इट इज रॉन्ग ऑन बोथ साइड्स। एक तो आपने किसी का टाइम लिया, उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। दूसरा, आपने उनसे एडवाइस ली, उस एडवाइस को आपने उपयोग किया, चाहे पार्शली ही किया हो, लेकिन आपने उनको ये कंफर्म नहीं किया कि उनकी एडवाइस आपके लिए यूजफुल थी। तो इट कैन बी रॉन्ग ऑन बोथ वेज। और फिर किसी दिन जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि कोई आपकी एडवाइस ले और फिर किसी और ने आपके साथ ये किया कि एडवाइस ले ली और बाद में अपनी मनमर्जी का कुछ किया और आपको आके ये भी नहीं कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड यू डिड गुड टू मी, देन यू विल फील बैड, राइट? सो दैट साइकिल ऑफ कर्मा विल ऑलवेज चेज यू, राइट? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो आप, या मेरी अपनी लर्निंग है फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू अर्जुन थ्रू द स्टोरी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, थ्रू द स्टोरी ऑफ महाभारत। मेरा आपके साथ में मैं फिर से अगर समराइज करूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी आर ऑल वल्नरेबल क्रीचर्स, we have lot of emotions, there will be situations which are not favorable to us, and the prime of everybody's life is duty. So these situations, these emotions can mislead you or misdirect you to fall apart from your duty, and that is the time when you need to be aware of your emotions and your situation and seek advice from somebody who is more experienced, more knowledgeable, ready to help,
and you should be humble to not only take the help, seek the help, seek the advice, but also express gratitude when uh, uh, it is successfully helping you sorting out your issues. So that is all from my side for this session. I would leave some time for your questions, observations, any feedback or anything. I would like to go through the chat box right now. Yes, यू आर राइट. आईफोन पता नहीं नाम क्या है इनका. आपको क्लास बंक नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. एंड आई कैन टेल यू दैट बिकॉज मैंने क्लास बंक किया, गोइंग बैक टू दैट स्टोरी ऑफ क्लास 9th, दैट वाज द ओनली टाइम. आप विनीत जी ने बताया कि मेरा सीए फाइनल में गोल्ड मेडल है, नेशनल रैंक है, बट 9th क्लास में दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई फेल्ड इन अ क्लास टेस्ट. तो दैट वाज माय इंस्टेंस ऑफ रियलाइजेशन कि भैया आप पहले से बहुत स्किल्ड हैं, होशियार हैं. मैं हमेशा से अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब आप लापरवाही करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं. नो स्किल, नो medals, no certificates can guarantee that you will always perform great if you yourself choose to to skip. Yes, Hriday, Lakshagra was the incidents I was quoting. यहाँ पर बीच में लिखा है, हाय सर. प्रीत किरीट का क्वेश्चन है, हाय सर, विच क्लासेस आर बेस्ट टू डू सीए कोर्स. मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सो मे बी यू कैन इलेबरेट. आई एम अज्यूमिंग कि यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल कोचिंग क्लासेस, फिजिकल या ऑनलाइन. सो देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है अभी, और आप पर्टिकुलरली जहां पर हो, मेरा उस जगह से टच नहीं है, तो मैं आई कांट से विद कॉन्फिडेंस कि आपको कौन सी क्लासेस करनी चाहिए. मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आई वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन सेल्फ स्टडी फॉर माय सीए फाइनल एंड सीए इंटर आल्सो. अब बहुत सारा कोर्स चेंज हो गया है, सिचुएशंस अलग हो गई हैं, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे उतना अच्छा होगा. मैंने 2 कोचिंग ली भी थी, जैसे मुझे याद है मैंने कॉस्टिंग के लिए और आई थिंक मैंने ली थी अकाउंटिंग के लिए. लेकिन वहां पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा तरीका पढ़ने का ये था कि मैं पहले कोचिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरी बुक को पढ़ लेता था. एंड उसके पीछे मेरा पर्पस, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि बिकॉज मैंने पूरी बुक एक बार तो पढ़ ही ली है अपने आप से, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं. तो मैं अपने फोकस और अपने बैंडविड्थ को उसके हिसाब से एडजस्ट करके प्रिपेयर रहता था टू गो टू द कोचिंग क्लासेस. तो वहां पे क्या होता है कि मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, मे बी हेल्पफुल टू यू. एक तो ये होता है कि आप एज अ ब्लैंक स्टूडेंट आप वहां गए, जो आपको पढ़ाया गया वो आपने पढ़ लिया, और एक आप गए आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा. आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप अपने लो पॉइंट्स पहले से जान के गए, तो आप उसके ऊपर फोकस भी कर सकते हो और आपका रिसीविंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है. तो मे बी हेल्पफुल. ओके, फ्यू पीपल आर सेइंग वेरी रिलेटेबल सर. थैंक यू सारिका. थैंक यू सर. थैंक यू समर्थ. लव्ड इट. आदित्य, थैंक यू. वेरी ब्यूटीफुल. राशि, थैंक यू. सर, कल मेरा सीए इंटर का रिजल्ट है. अटेम्प्ट्स पहले लग गए हैं, इसलिए अब लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, पर छोड़ना नहीं चाहती. सो अपर्णा, देखो, जब हम फेल हो जाते हैं, या जिसे अटेम्प्ट लगना कहते हैं इन द सीए वाला लैंग्वेज, तो देखो, इट इज लाइक दिस कि आपको एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, आपके कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं, आपका ये भी हो सकता है कि आप
100 नंबर में से आपने 70 नंबर ही अटेम्प्ट किए, आपको समय नहीं मिला, तो आपके टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो सकता है, क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में गलती हो सकती है। तो देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि आपने वहां पे सही स्कोर क्यों नहीं किया। तो वो जो इंस्टीट्यूट बाद में अपनी की रिलीज करता है कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, मेरे हिसाब से सबसे पहले इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट, इफ द रिजल्ट इज नॉट फेवरेबल टू यू, आपको जाके वो चेक करना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ पे हुई। द मोमेंट आप ये पता कर लेते हो कि मैंने गलत आंसर लिखा या छोटा लिखा या ज्यादा लिखा या उसके आंसर की रेलेवेंस में प्रॉब्लम थी, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम थी, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ढूंढते ही आपका सोल्यूशन अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, रीच आउट टू समबडी हु कैन guide you, who can lead you to a better performance. Very beautiful lesson, so nice hearing you. Thank you, Rashi. Loved every bit of it. Thank you, Divya. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, Akshit. Thank you, Dhairyash. Thank you, Dhairyash. Sir, how to be self-motivated throughout competitive exams such as CA exam? देखो, मोटिवेशन का ना, मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन जैसे भी बोलो, आपको हमेशा एक ही चीज सोचनी चाहिए, जिसको बहुत सारे लोग एक टेक्निक बताते हैं कि आप कहीं पे लिख के रख लो अपने सामने। आपको हमेशा दिखना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये बनना है, राइट। सपोज आप यही लिख के रख लो कि मुझे 5 लाख महीना की कमाई करनी है, राइट। आप एक टारगेट सेट करो और वो टारगेट को अपने सामने विजिबल रखो। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब उस टारगेट के सामने हल्के पड़ जाएंगे। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योरसेल्फ मुझे ये अचीव करना है। उस अचीवमेंट वाले टारगेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अब उसके आसपास आप अपनी दिनचर्या को बनाओ। वो फिर ना टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, क्या फूड खाना है, कितनी देर मुझे घूमना है, किससे बात करनी है, कब करनी है, नहीं करनी है, कौन सा कोचिंग जाना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सा इवेंट अटेंड करना है, नहीं करना है, सब कुछ हो जाएगा। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में हमेशा आपका टारगेट विजिबल होना चाहिए। आप कैसे डिफाइन करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही। इट शुड नॉट बी कि मतलब शुड नॉट नहीं, रादर ये बोलूंगा कि मोटिवेशन की वो फायर नहीं आती है जब तक कि आपके दिमाग में ये हो कि हाँ वो पिताजी ने बोला है, माँ ने बोला है, इसलिए मुझे करना है। आप करना चाहते हो, जब आप फिक्स कर लेते हो कि मुझे ये बनना है, तो वो होगा। यू विल बी एबल टू डू इट। बाकी चाहे आप किताबें पढ़ लो, चाहे आप सेशंस अटेंड कर लो, वो वाइप आउट हो जाता है, वो फेड हो जाता है। आपका अपना जो टारगेट है, जैसे मैं बताता हूँ हाउ व्हाट वाज मोटिवेटिंग मी ऑल द टाइम। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, मतलब हमारे गांव में आज भी, जिस गांव से मैं आता हूँ वहां पे शायद 6-7 हजार लोग रहते हैं। अब तो परिस्थितियां फिर भी सुधर गई। जिस समय मैं वहां पढ़ता था, सरकारी स्कूल था और बहुत सारे, मतलब सीढ़ियां, आंगन टूटे हुए थे, उस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं था उस समय में। मेरे मामा उस समय मुंबई में रहते थे और उनका काफी अच्छा घर था। वो हमें घुमाने ले जाते थे, हम गर्मी की छुट्टियों में कभी उनके यहाँ जाते। तो मेरे दिमाग में ना हमेशा एक टारगेट था कि मुझे बड़ा होके इनके जितना पैसा कमाना है, ताकि मेरे घर कोई आए और मैं उनको घुमाने ले जा सकूं, आइसक्रीम खिला सकूं, गेम जोन ले जा सकूं। तो एक मैंने टारगेट सेट कर लिया। वो ही टारगेट मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो आपका टारगेट बहुत क्लियर, स्पेसिफिक एंड स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। सर यू सेड, आयुषी ने लिखा, सर यू सेड यू शुड थिंक ऑफ आवर टास्क नॉट आवर चॉइसेस बट एज आवर ड्यूटी। इज इट ड्यूटी टू आवरसेल्फ, टू अदर्स और सम हायर आइडियल? नहीं, ड्यूटी आपकी इंडिविजुअल पर्सनल होती है।
आप किसी के प्रति कोई ड्यूटी नहीं करते हो। ड्यूटी मतलब आपको ये करना है, इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस, आपकी एक ड्यूटी है, वो आपको करना है। अब जैसे मुझे ये ड्यूटी दी गई कि आपसे बात करूं, अब ये आपके प्रति मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे ये काम दिया गया, मुझे आइडेंटिफाई किया गया कि इस व्यक्ति को ये काम आता है, तो मुझे वो काम दे दिया गया, अब वो मेरी ड्यूटी है। अब ये नहीं है कि मेरा मन करे तो मैं आपको सिखाऊं, ना सिखाऊं, आपसे बात करूं ना करूं, नहीं, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना ही है। Since different people define duty differently, how do we determine what our true duty is? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आपको हर सिचुएशन में आपको अलग अलग, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कहते हैं कि सूर्य का धर्म है उगना, है ना। एक होता है कि माता का ये धर्म है, पिता का ये धर्म है, भाई का ये धर्म है, पुत्र का ये धर्म है, शिष्य का ये धर्म है, गुरु का ये धर्म है। ये सभी धर्म, उसको जस्ट आप फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ड्यूटी से रिप्लेस कर लो। तो आप जब जिस पोजीशन में हो, आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। ऑब्वियसली एक 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, जो नन्हे बच्चे होते हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, उस एज तक वो ग्रांटेड है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, वैसे वैसे आपकी ड्यूटीज आने लग जाती हैं। अब उसमें ड्यूटी ये भी है कि आपके घर पे कोई परिचित आए हैं, अतिथि आए हैं, तो आप उनको पानी पिलाओ, उनसे बात करो, उनको चाय नाश्ता कराओ, उनको एंटरटेन करना, है ना, वो भी आपकी ड्यूटी है, वो भी आपका उस समय के लिए, फॉर दैट 1 आवर 2 आवर वॉट एवर, वो आपकी ड्यूटी है। ऐसे ही उस अतिथि की भी ड्यूटी है कि आपके गले ना पड़ जाए। आप जब किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हो, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप उनके गले ना पड़ जाओ, और आप अपने लिमिट में रहते हुए जितना बातचीत करनी थी उतनी की, थोड़ा बहुत मेल जोल किया, उठे बैठे और चले आए वापस। तो ये ड्यूटी को हर अगर डिफाइन करने की बात है तो बेसिकली सिचुएशनली आपको मोरल्स और एथिक्स, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ड्यूटी समझ में आ सकती है। बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है, तो अभी के लिए आई वुड से दिस मच ओनली। थैंक यू निपुण, थैंक यू FY BCom, थैंक यू हीत। Sir, my personal opinion, I view Bhagavad Gita as answers to Arjun's question. It teaches me asking right questions at right time to right person. In short, it teaches me to ask fearless. Beautiful. Mehak, your conclusion or your summary about Gita is brilliant. In fact, I believe in the same thing. मुझे भी ये लगता है, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण के उत्तर जितने इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट अर्जुन के क्वेश्चन हैं। अगर उन्होंने सही क्वेश्चन नहीं पूछे होते हैं तो ये सारी बातें निकल के नहीं आती। सो यस, बैंग ऑन, राइट टाइम, राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन इज वेरी मच needed, and that's what leads you to the right thing. Divya, sir, what if we feel the advice given by elders is not what we really want to do? सुनो सबकी करो अपनी, your future is in your hands and decision you take. See, हो सकता है किसी की एडवाइस गलत हो, so that is why I am repeating कि आपको एडवाइस सही या गलत हो सकती है, और आप ये एक्सप्रेस भी कर सकते हो कि नहीं, मुझे आपकी एडवाइस ठीक नहीं लग रही है, तो लेकिन आपको ये कम्युनिकेट करना होगा, एंड यू कांट बी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड अबाउट मी, यू हैव टू बी रीजनिंग एंड रीजनेबल अबाउट इट। और ये जो एक स्लोगन है कि सुनो सबकी करो मन की, इट कैन गो सो रॉन्ग इन सो मेनी वेज एट सो मेनी ओकेजन्स। तो देखो, आपको एक चीज समझनी होगी कि आप जिस स्टेज पर हो, आप अपने गोल्स तो डिसाइड कर सकते हो, but there is so much of experience that the other people, especially your elders, hold, कि they know things which you don't know, they have experienced things which you haven't experienced. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि उनकी एडवाइस कॉन्टेक्चुअली शायद ठीक ना हो, पर उनका इंटेंट ठीक है, तो आप उनकी एडवाइस को रिजेक्ट मत करो।
और आप ये भी मत सोचो कि नहीं मुझे अपने मन की ही करनी है. जस्ट सी कि यू हैव एन एथिकल टारगेट एंड यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी. अगर ये दो चीजें ठीक हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. आप किसी की एडवाइस नहीं भी लेनी, आप उनको पोलाइटली बोल दो कि ये मेरे को नहीं जम रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, विच इज फाइन. बट इट शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय योर एथिकल टारगेट एंड योर ड्यूटी. अगर आप ये करते हो तो कोई चीज कभी गलत नहीं होगी. इट्स ऑल ओके. Okay, I think I have gone through the chat box. If I have missed anyone, please let me know. And otherwise, thank you so much. And I would like to say कि जो आपने पोस्टर बनाया किसने बनाया, I would like to know. खूप छान डिझाईन केला तुम्ही. So it's really wonderful. I really I'm really impressed. Sir, Hello. Dharti Narwani. Dharti? Okay, Yes, Dharti, ma'am. okay. Hello. Haan, Hello. Dharti. Sir is complimenting you on your brochure, on your... Yeah. It's wonderful. It's so charming. Yeah, she always done a fantastic job, sir. Very nice, very nice. Any So more questions? yes, Any more questions, Dharti? No, ma'am. ठीक है, संजय? Sanjay, are you there? Sanjay, you are not audible properly. Are you there? So, ma'am, am I audible now? Yeah, yes, better. Okay. So, on behalf of HR College of Commerce and Economics, I, Sanjay Waghela, take this opportunity to give a formal vote of thanks. I would like to express my gratitude towards our speaker, Prateek sir, for the session on the Arjun within. Yes, we do all go through situations like Arjun in our daily lives. And your session, I think, will definitely help us, sir, in understanding why it becomes more important to be aware, to know our emotions better, and take the right advice in times like those. Thank you for that insightful session, sir. I also would like to thank our principal, Professor Dr. Pooja Ramchandani ma'am, Vice Principal Dr. Rani Tyagi, and Dr. Jasbir Sodi ma'am, and the teachers, administrative staff for organizing this induction lecture series. Last but not the least, I thank all the participants present here for being an interactive audience. Thank you all. thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Bye. I'll log out then. Ma'am, with your permission, may I end the meeting? Yeah, Dharti, please. Just one request, if I can get the recording of this meeting. Yeah, it's We will send it, sir. Yeah. Thank you so much. All the best.